This house cannot be a platform to level allegations. There are no allegations. What's wrong with you? What's wrong with you? Jairam Ramesh, I know. What is your statement? Mr. Mallikarjun Kharge, sir, what your team is doing? No. I call upon Mr. Mallikarjun Kharge to put documentation on record right now, which he has done with respect to allegations involving the name of the Prime Minister. Do it. You have used expressions which are not appropriate. Sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. He is giving valuation. I know. Sit down, take your seat. Take your seat. So, Mr. Kharge, Honorable LOP, I call upon you that we must work. I know you have made some very strong observations regarding me also a while ago. I can assure you, you bring on the table huge experience. I also bring on the table modest experience. I am imploring you that what's the problem? What's the problem? No, the debate in the house, the debate in the house has to be firmed up on duly authenticated record. This house cannot be a platform for free fall of information. One can't trade anything one likes. We cannot have a spectacle which we had recently. No, I would urge you, sir, request you, in the name of your seniority, in the name of position you hold, that I am saying so because you have, in last 3 minutes, used expressions which you know are stigmatic. No. Authentication. No. Every allegation will have to be authenticated, Mr. Mallikarjun Kharge. That's the direction of the chair. Have to be authenticated. Go ahead. No, sir. Point of order. So, point of order, sir. Point of order. Yes. Under which rule? Sir, he said 238(2). 1 and 2. When Honorable Sushil Modi ji referred to that rule, sir, while speaking shall not make a personal charge against a member. He didn't speak anything like that. He was continuing his speech, sir. And how the point is valid? Mr. Siva. Valuation. Value is not against any member, sir. Sit down. Yes. Judicial decision is pending, but he didn't quote that. It was quoted only 238(2) was quoted. 238(2) was quoted. He's a distinguished chartered accountant. The leader of the opposition is talking only of valuation. No. You are not listening carefully. No. He did not speak about valuation. He spoke about passing well. Yes. Honorable Finance Minister. 1 second. Honorable Finance Minister. Sir, if I can make some sense of what is going on, it's very smart to say we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table, we are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please put the You should agree. One second. Sir, after listening to the Honorable Finance Minister, I thought everyone will agree. Every word she spoke carried sublimity, and you are objecting. Sit down.
down, sir. Sit down, sit down, sir. दोस्ती नहीं है सर, दोस्ती नहीं है. Mr. Digvijay Singh ji, what Khadge ji said was beyond insinuation. Now, just believe. No, you have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Khadge said so. No. No, sir, yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also relent. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. What has he said against the Prime Minister? Please. I would like to know what he said against the Prime Minister. Listen to him carefully, you'll know it. No, listen to him carefully, you know it. Yes. देखिए सर, मैं ये कहा एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई बड़ी है और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई. अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए. ये कहा ये. अब दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता. नहीं, आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे. नहीं, ना. दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी. We have to rise to a level. मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है सर. My suggestion is, let us believe in ourselves. Let us believe in our strength. Let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी institutions को analyze करने के लिए अधिकार दे दिया. Someone is speaking somewhere will speak something about us, and we will get rocked by it. This can't be. बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है. ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं. मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ. इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं. वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है. देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं. ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी. ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ. The leader. तो मैं देखिए ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है. सर एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा. हर बार नहीं. मिस्टर चिदम्बरम, प्लीज. No. While sitting, you are speaking not good. Sir, I have a request to make to the leader of the opposition. Sir, every time your member rises, you are a very senior member. Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. So, sir, I request you that
The member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए ये डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं। तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ग्रुप ने 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक सर साथ पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ। किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट। और ये तो है नहीं सर इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। लीजिए। नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट। हाँ सॉरी, 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के Sir, what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, ये कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है। अरे मैं Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है। Now do it, authenticate it. Now, यस and ask him to do देखिए, it. और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदे। वो अब भाषणों में, चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, ऐसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाने मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना। ठीक, तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे। चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो
उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, तो पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे बीएसएनएल हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे, 30 लाख वैकेंसीज है। 30 लाख में 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, एससी को, एसटी को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते शायद, मोर और लेस उसी में आते शायद, ये बैकवर्ड्स में ओबीसी में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10 लाख और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे, और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और एश्योर्ड जॉब जो लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे। और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना, प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। 1 second, sir. 1 second, please take your seat. One second. India has robust mechanism where how people get contracts. One second. No. Honorable LOP. No. One second. Take your seat. No. We cannot send a signal. India. No. We cannot allow. Mr. Chidambaram, you know it more than anyone else. We have a transparent, accountable, robust mechanism. I am only cautioning the LOP. He is trying to give an impression that India is a country where contracts can be given like this. No. Contracts are given on the basis of accountability and mechanism. No. I know the rules are such. LOP will bear this in mind. Please. No. Take your seat. You are a senior member. Let us do it. You are very senior. One second. No. Take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. Honorable members, I have got input. Honorable members, I have got input from very senior quarters in the country and outside the country that Parliament should not be allowed to be used to run down our transparent, accountable, robust mechanism. No, LOP said as if something has been given on a plate. No. Take your seat. LOP. You cannot reply. Honorable Chair, give me a minute. Honorable Chair, the opposition is trying to allege that the chair should not have made these comments. I would like to point out to the Honorable Leader of the Opposition and his other colleagues that the chair...
Honorable Chairman, I would like to urge the Honorable Leader of the Opposition and his other colleagues that the chair is duty bound to protect the dignity of India. The chair is duty bound to ensure that national interest is not compromised. This is the Council of States. If any member makes a comment which insinuates, and I have the definition of insinuation, if he makes a comment which insinuates, Sir, you cannot reply. Please take your seat. Take your seat. Yes, sir. You reply, you reply. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, take your seat. We have to say from this platform only that which is in national interest. Authenticated. It can't be allegation without substantiation. No. LOP. LOP. Shri Mallikarjun Kharge, please. What comment has he made? Sir, you cannot Yes, I tell you. One second. Ask them to take the seat. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Ask your members to take their seats and please. Yes. Please, sir, you cannot reply. I'll tell you. You take your seat, I'll tell you what he has said. Please, take your seat. Take your seat. No. Please take your seat. Take your seat. Yes, go ahead. Mr. Mallikarjun Kharge. गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए उनको परेशानी है, उनको। सर मुझे तो इसलिए सर अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए सर। थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था और 2G घोटाला, चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा सर। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर कि बाकी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी सर, बाकी चीजें कोर्ट की कार्रवाई हुई सर, लेकिन मामा जी को 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर। मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर, ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना, जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। मैं बोल रहा हूं, जिवारी से बोल रहा हूं। लेकिन सर मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं सर, जिस तरह से उनकी सरकार ने मदद की सर। कोतरोकी साहब भागे, कोलालमपुर में अपील लेट फाइल किया गया, वहां से चले गए अर्जेंटीना सर, वहां भी कार्रवाई में देर किया गया, फिर वो भाग करके इटली चले गए। तो सर वो भाग गए इटली। रूडी जी, इटली काफी सुरक्षित जगह है परिवार के लिए, मालूम है ना आपको? हाँ, काफी सुरक्षित जगह। लेकिन सर सबसे तो शर्मनाक बात हुई सर कि लंदन में जो कमीशन का पैसा था सर, वो बैंक अकाउंट में जमा था, और जमा था तो वो ब्रिटिश सरकार ने उसको इंपाउंड कर रखा था। उस समय के कानून मंत्री ने भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी दत्ता साहब को लंदन भेजा और क्या कहा, ये मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ये लोग भी सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उसमें उन्होंने कहा, सर कमाल की बात है सर।
अरे आप तो ज्यादा क्या हम आपको बोलें, चलिए। सर वो जो उनका बहुत बढ़िया असर है कि द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टोल्ड द बैंक दैट he has got the authorization of the government of India to convey that nothing is pending against Mr. Kotroki and the amount be released. और ये पूरा ईमेल में है सर मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा। तो आप भगाने में मदद करते हैं, आप उनका पैसा छुड़ाने में मदद करते हैं, और भेजने वाले कौन थे उस समय के स्वनाम धन्य माननीय कानून मंत्री हंसराज जी। मैं सब सदन के सामने बोल रहा हूं। तो सर ये इनकी सर क्या, एंड सर एक बात मैंने कल हल्के से कहा था, ये आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है, वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर है और उनके बहनोई साहब बेल पर है। और वो केस क्या है? वो केस है कि 50 लाख में आपने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली। ये सही बात बोल रहे हैं। और सर और ये सर मैं बोल रहा हूं नेशनल हेराल्ड के मामले में। सर नेशनल हेराल्ड, अरे आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, छोड़िए सर नेशनल हेराल्ड के मामले में सर आप ध्यान रखें सर कि एक आजादी के आंदोलन का अखबार था, उसके शेयर गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी, टंडन जी सब लोग रखे थे सर। एक रात उसके सारे को बेच दिया गया यंग इंडिया को। यंग इंडिया के ओनर कौन कौन थे? माता जी और पुत्र जी और मोतीलाल वोरा जी सर। और उसको जो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहां पर आया तो उस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। और क्या मतलब हुआ कि राहुल जी और उनकी माता जी के कंट्रोलिंग शेयर के यंग इंडिया को मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ की भारी प्रॉपर्टी मिल गई। ये है सर आज भी बहादुर शाह जफर मार्ग चले जाइए सर, वहां पर हेराल्ड की बिल्डिंग है और वो कितने हजारों करोड़ की है देख लीजिए, और उसके मालिक कौन है जान लीजिए आप। और सर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक केस हुआ, केस में सर कॉग्निजेंस हुआ, ये क्वाशिंग में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, इनको बेल लेना पड़ा और ट्रायल फेस कर रहे हैं। अरे अनिल बाबू, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने के बाद आप बेल में हैं। अच्छा ठीक, सर सर ये सर 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 ये बहुत गलत है सर, दबाव में डाला गया, ये क्या मतलब है सर इसका? ये बहुत गलत है सर, ये बहुत गलत है। पूरा वापिस दे, बोलो पूरा वापिस। बैठिए 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 अधीर साहब बैठिए बैठिए। नथिंग, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बैठिए आप, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए, आप सब बैठिए। It is not on record. It is not on record, but I would like to place it. I would like to place it on record, sir. This is the thinking of the Congress party. They do not even believe the institution, including Supreme Court. Okay, please, please. माननीय सदस्य जी, रविशंकर जी प्लीज। सर बैठिए सब लोग, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए बैठ जाइए। नो सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। नो बैठिए, आप बोले प्लीज। सर ये अधीर बाबू ने कोई नई बात नहीं बोली। इनके नेता राहुल गांधी ने राफेल के जजमेंट पर भी टिप्पणी की थी, कार्रवाई हुई, उन्होंने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता का भी वही हाल है और आपका भी वही हाल है। चलिए सर हम लोग बैठिए, आप बैठिए। नो अधीरदा बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आपके जब वक्ता बोले,
अभी आपके वक्त आप बोलेंगे तब बैठिए, आप बैठ जाइए, आपको अभी अवसर और है, उसमें आप बोलिएगा। नाउ लेट ऑनरेबल मेंबर स्पीक, प्लीज प्लीज प्लीज। सर जी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, उससे तलखी होती है सर। हमें जरा नहीं तकलीफ उनको होती है सर, कोई परेशानी नहीं। पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। बैठिए सर। तो सर मैंने खाली अभी देखिए सर, हमने अभी खाली बोफोर्स और नेशनल कहा तो इतनी परेशान हो गए। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। 1,80,000 करोड़ स्कैम ऑफ 2G, नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ कोल स्कैम, 70,000 करोड़ ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम। ये सब कब हुआ? जब उनकी सरकार थी सर, मालूम है। आदर्श घोटाला, और सर आदर्श घोटाले में तो सर शर्मिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए। जो मकान 12 लाख करोड़ जो मकान बने थे सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उसको किसने लिया? सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ने। ये तो इनका हालत है। सर अब मैंने मामा जी की कहानी कुछ कही, अब मैं जीजा जी पर आता हूं सर। जीजा पे आई। सर कल मैं बहुत सुन रहा था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाज फैसिलिटेटिंग मिस्टर अडानी। हाँ सर, फैसिलिटेशन क्या होता है सर? उसकी कहानी जरा सुनिए सर। सर एक सर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत होता है सर, लेकिन सर एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सर, कमाल। सर ये क्या है सर? हरियाणा में एक कंपनी बनाओ, दबाव से जमीन ले लो, फिर एक हाउसिंग कंपनी से लोन ले लो, फिर वो हाउसिंग कंपनी आपको पूरा महंगे दाम में खरीद होती है, और कुछ करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आप 300 करोड़ के मालिक बन जाओ। देखिए तो क्या है सर, क्या है? ये कहते हैं वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब सर वहीं पर बात नहीं हुई सर। हमारे अर्जुन मेघवाल जी बीकानेर कह रहे हैं सर, मुझे मालूम है बीकानेर के कई इश्यूज हैं। हाँ सर मुझे मालूम है इस मामले पर हम दोनों ने कुछ काम किया था सर, वो तो हाइट हो गया सर। ओके 1500 एकड़ जमीन ली गई सर, 300-350 एकड़ जमीन बनोई जी की थी सर, समझे आप? और सर क्या हम लगाएंगे? सोलर पावर। और बाद में मालूम हुआ किसानों को दबाव देकर, फंसाकर, जलसा कर लिया गया। आज 14 FIR है, 3 इनके भनोई जी के भी खिलाफ में है। और वहां फैसिलिटेशन कौन था? द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, लाइक द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, टू हेल्प इंक्रीजिंग द वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो सर पूरा सब कुछ तो भरा हुआ है सर। उसके बाद एक मुझे और बड़ी बात कहनी है सर। क्या क्या बातें कही गई सर? मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन्स बने तो क्या गलत है क्या? वो क्या चाहते हैं? सारा वेपन बाहर से आए ताकि डील हो और कमीशन हो। ये अंतर है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर। क्या आप देख लीजिए सर, ऑगस्टा वेस्टलैंड, क्या जितना भी बाहर से सामान आएगा सेना का, उसमें कुछ ना कुछ डील होगा, कमीशन होगा। राफेल की बात कही गई सर, तो मैं उसका जवाब देना ही चाहता हूं सर। भारत की वायुसेना अपने मारक वायुसेना के लिए बार बार आग्रह कर रही थी। 12 साल इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज नहीं होने दिया। इन लोगों ने कमीशन नहीं मिला, बस कोई कमीशन नहीं फाइनलाइज हुआ। मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री बने और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राफेल को इनकरेज किया। आज देखिए राफेल कितने साहस के साथ टाइगर की तरह गरजता हुआ उड़ता है, तो देश सुरक्षित होता है। सर हमारा कहना एक बात है सर, राहुल गांधी जी कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर। सर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते।
मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर। राहुल गांधी ने कल की टिप्पणी के 2 काम किया है। आज जब भारत की विश्वसनीयता दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो उन्हें दुनिया को बताया है कि मैं इसके खिलाफ हूं। और दूसरा सर, भारत के उद्यमी बाहर में जहां काम करेंगे सर, कल ये स्टार्टअप की आलोचना करेंगे और करते ही रहते हैं सर। क्या करते हैं याद करिए सर, जब पूरे कोविड में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया, व्हाट इज स्टार्टअप। हर विषय पर भारत की उद्यमशीलता, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये क्यों है सर, ये क्यों है सर, फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें, हम क्या करें। अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए, देश की जनता आपको वोट इसलिए नहीं देती कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, गरीबों की चिंता हो रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। तो भारत मां को जो अपमान किया है उनके साथ बैठे थे। बिल्कुल सर, मुझे एक बात कही थी सर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे सर। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का झंडा लहरा रहा है दुनिया में सर। 10,000 करोड़ मेड इन इंडिया बाहर जा रहा है सर, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो इसलिए अगर इतना एक्सपोर्ट हुआ सर, फिर भी आप परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आज चिप्स बनने की बात हो रही है, फिर भी आप परेशान हैं। अरे कभी तो शुभ, आज 5G आ रहा है तब भी आप परेशान हैं। तो कभी ना, मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी बहुत इस बात का दावा करती है that the computer revolution in India was brought by their father Rajiv Gandhi. Maybe sir. तो उसी बिना, हाँ मान लीजिए, ये मैं आपकी उसी बिना पर तो ही परंपरा का तारीफ करते हैं आप, वो भी नहीं करें। अरे इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि स्टार्टअप की बात की है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, डिजिटल इंफ्रा, और इसमें भी बजट में भी जब चर्चा होगी सर विस्तार से आएंगे। सर एक बात मुझे और कहनी है सर, करप्शन की बात तो बहुत हो गई। राहुल गांधी आरएसएस से कितना प्यार करते हैं सर। कल हम लोग में एक चर्चा हो रही थी कि कैन राहुल गांधी फुल्ली प्रोनाउंस द फुल नेम ऑफ आरएसएस, तो इस पर डिबेट हो गया सर। फिर एक आया कि कैन ही टेल द फाउंडर्स नेम ऑफ द आरएसएस, इस पर भी डिबेट हो गई। सर आज मैं उसको बहुत विनम्रता से बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी एक देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से देश की सेवा कर रहा है, और हम सबों को गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा है। लेकिन सर राहुल गांधी जी को मुझे एक बात कहनी है सर, मुझे एक बात कहनी है सर। राहुल गांधी जी आप ही नहीं, आपके पिताजी, आपकी दादी जी और आपके परदादा जी सब संघ की आलोचना करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी। और अब आप जरा शांत रहिए ना, आज आपका नंबर बाद में आएगा, शांत रहिए। और सर फिर इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। आज सर देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहां से कहां पहुंच गया, वो विचारधारा देश में कितना लोगों ने स्वीकार किया। आज हम लोग सत्ता में हैं तो गर्व से हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं, और देखिए वो कहां चले गए सर, देखिए कहां चले गए। और आगे भी जाएंगे। अब अभी आज काफी चर्चा होती है सर कि 24 में उनका नंबर कितना आएगा, ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, और घटने वाले हैं आप। 24 ही रहेगा सर। मेरा खाली कहना है, एक बार तो आप विचार, अब क्या कह गए सर आप कि पूरी अग्निवीर योजना आरएसएस ने बनाई है। अब इसका कोई मतलब है सर? ये अपने बेसिक समझदारी का अभाव है। जो
पूरी योजना सेना के विशिष्ट लोगों ने पर्याप्त चर्चा करके बनाई। सेना के जनरल्स बैठे, कई राउंड कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद हुआ कि उम्र कम करने का विषय बहुत दिन से चल रहा है, वो किया गया। अब सर मेरे पास एक संख्या है सर कि इसके बाद कितना बढ़ा है सर। तो एयरफोर्स ने सर जो बात कही है उसमें सर है कि 7 लाख से अधिक IAF receives 7.5 lakh applications under अग्निपथ स्कीम क्लोज रजिस्ट्रेशन। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो अग्निवीर स्कीम इतना लोकप्रिय हो रहा है तभी तो संख्या बढ़ रही है। तो सर मेरा आर्मी में भी वही है सर, पूरे महिलाएं बहुत आई हैं। आज तो सर हमें गर्व से कहना होगा सर, और आज मैं उस दिन 26 जनवरी पर बैठा हुआ था कर्तव्य पथ पर, हमारे सारे मित्र बैठे हुए थे। जिस तरीके से भारत की नारी शक्ति को मोदी जी ने सम्मान दिया, हमें बहुत गर्व है। सेना की सारी टुकड़ियों का लीड एक महिला अफसर कर रही थी। मिसाइल जो चला रहा था उसको भी एक कैप्टन महिला कर रही थी। एयरफोर्स के टैब्लू पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी, और सीआरपीएफ के बटालियन में लेडी बटालियन लीड कर रही थी, जिसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया। और असम राइफल्स में भी महिला यूनिट थी। तो जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को आगे बढ़ाओ, और वो आगे बढ़ी हुई बेटियां कर्तव्य पथ में दिखाई पड़ रही थी, अग्निवीर में भी आ रही है। तो कृपया करके इस तरह की गलत बयानी कर करके, झूठ बोल करके नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी। लेकिन एक ही बात है सर, कितना समझाया जाए इनको सर, बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि एक बार आदमी हारता है तो थोड़ा जांचता है कि हमसे क्या गलती हुई, दोबारा हारता है तो और जांचता है। सर यहां समस्या क्या है, हारो या जीतो कोई पूछने वाला है नहीं, बेसिक समझदारी, यही सवाल है सर। वो लोग भी ना पूछेंगे ना उनके समर्थक पूछेंगे, अंदर अंदर खूब बात करेंगे, हम नीचे गिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आप और नीचे गिरेंगे। सर ये देश बदल रहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, भारत में उद्यमशीलता फैल रही है। सर आज सुरक्षा की बात होती है तो मैं आज कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे काइंडली अलाउ करिए सर। गडकरी जी पार्टी के अध्यक्ष थे सर, तो उन्होंने राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई कि भारत सीमा और कश्मीर पर जाके अध्ययन करे सर। मैं उसका सचिव था सर, तो हम लोग कई बार कश्मीर गए सर, लद्दाख गए थे सर। तो लद्दाख गए थे तो वहां पर गांव में वहां के लोगों ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं बने देते। मैंने क्यों भाई, कहा बनती है तो उधर से चीन अपोज कर देता है और रुक जाता है काम। मैंने क्यों, कहा नहीं। तो सेना के लोगों से बात किया, कहा वी हैव इंस्ट्रक्शंस नॉट टू डिस्टर्ब चाइना। सर सुनिए सुनिए सर, सुनिए सर। आकर के उस समय उस हाउस का मेंबर था सर, हमने सवाल लगाया सर, और मेरा सवाल सर पहला लग गया, उत्तर भी मिला है। और सर मैं खड़ा हुआ सर, विदेश मंत्री ने कहा मैं रविशंकर जी से आग्रह करूँ सवाल न पूछे। हमने कहा क्यों नहीं पूछे भाई, कहा प्लीज मत पूछिए। उस समय हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे, आधा घंटा बहस चली, कहा रवि जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हमने कहा क्या बात है मामला। मालूम हुआ कि उनकी ऑफिशियल लाइन थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन को गुस्सा नहीं देना है। ये उनके स्टेटमेंट है एक एंथोनी के हाउस में। ये चीन के प्रति आपके और सर ये आज की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सड़क बन गई है, सारे पुल बन गए हैं। सर एक बात बताऊं सर, इनकी सर एक परेशानी और है सर, बार बार इनका गुजरात का दर्द छलक जाता है सर। और सर ये हम इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि कल वो भी मैं सुन रहा था, तो हताशा, तलखी, परेशानी, गुस्सा, पीड़ा, कहीं ना कहीं गुजरात का दर्द छलकता है। सर हमको लगा कि ये दर्द अब कम होगा। सर गुजरात में हम भी प्रचार में थे, बाकी लोग भी गए सर। इतनी जबरदस्त हार 27 साल के बाद, फिर भी गुजरात। अरे कुछ तो जरा समझो भैया, कुछ तो समझो।
तो सर मैं इसलिए कह रहा था सर कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात करता है कि वहां उद्यमी आए, तो गलत क्या है? आज गुजरात में पूंजी निवेश हो रहा है कि नहीं? आज गुजरात में गिफ्ट सिटी आई है कि नहीं? आज गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है कि नहीं? आज गुजरात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि नहीं? तो इनको सबसे परेशानी है क्योंकि जहां गुजरात, राहुल गांधी का एंटीना उड़ जाता है। और ये एंटीना जो 2002 से उठा हुआ है सर, आज तक उठा हुआ है। लेकिन फिर कहूंगा कभी ना कभी तो समझ जाओ मेरे दोस्त जी, आप बड़े सम्मानीय नेता हैं। अब आप अपने सम्मानीय नेता आप क्षमता के कारण है कि परिवार के कारण है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो समझना चाहिए सर, मैं आपने बड़ी कृपा की कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं सारे उनकी बात का प्रतिकार करता हूं। वो झूठ हैं, शर्मनाक हैं, बेबुनियाद हैं। और जो पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, वो ये आरोप लगाते हैं सर कल सर फोटो बहुत दिखाई गई सर। अब पता नहीं आप क्या कहते हैं। देखिए ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर, बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। ये देखिए सर, ये मुख्यमंत्री जी की फोटो है सर। ठीक है, रहने दीजिए। ओके, ठीक है, ओके। सर आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए। हाँ सर, ऐसा तो नहीं होगा। वो करे तो ठीक, ओके, जवाब दे तो गलत, ये नहीं चलेगा। ये क्रम डबल स्टैंडर्ड। सर आपने मुझे अवसर दिया, अब बैठिए। आप ठीक है सर, आपने मुझे अवसर दिया सर, थैंक यू। इसके लिए मैं आपको हृदय से कृतज्ञता सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट जरा। जिन माननीय सदस्यों को अपने भाषण सभा पटल पर रखने हैं वो कृपया रखें, उनको अनुमति है, प्लीज।